गैसियस स्टेट से हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, which gas law states that the volume of a gas is directly proportional to its temperature at constant pressure. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होगा. दिस लॉ इज द चार्ल्स लॉ. According to Boyle's law, what happened to the volume of a gas when the pressure on it is doubled while keeping the temperature constant? तो Boyle's law हमें कहते हैं कि volume is inversely proportional to the pressure. अगर आपके पास pressure बढ़ेगा तो volume आपका half हो जाएगा. A option. The ideal gas equation is given as, ideal gas equation आपके पास है PV is equal to nRT. B option. Which of the following assumptions is not true for an ideal gas? तो ideal gas में कौन सी assumption हमारे पास नहीं सही? That one is gas molecules have a high attractive forces. तो हमें कहती है कि gas molecules में कोई attractive या repulsive forces नहीं exist करती ideal gas में. So D option is the right one. Which law explains the diffusion of gases at a constant temperature? तो diffusion of gases हमारे पास है Graham's law of diffusion and diffusion. A option. The value of a gas constant R in SI unit. SI unit हमारे पास है 8.314 joule per mole per Kelvin. If the number of moles of a gas is doubled in a container by keeping pressure and temperature constant, what happens to the volume? ये हमारे पास है Avogadro law. ये volume is directly proportional to the number of moles. Number of moles बढ़ेंगे, volume भी बढ़ेगा और आपके पास क्या हो जाएगा? डबल ही हो जाएगा. वो डबल है तो वॉल्यूम भी डबल है. डायरेक्ट रिलेशन है बाय एवोगैड्रो लॉ. Which of the following describes the partial pressure of a gas in a mixture? Partial pressure of a gas क्या है? The pressure exerted by one component of a gas mixture. B option. The kinetic molecular theory of gases assumes that gas particles are in a random constant state of motion. A option. According to the kinetic molecular theory, the average kinetic energy of gas particles is directly proportional to. Kinetic molecular theory के मुताबिक average kinetic energy proportional है temperature. A option. Which of the following statement is not an assumption of the kinetic molecular theory of gases? That is gas particle, not an assumption. Gas particles are in constant random motion. ये बिल्कुल है हमारे पास assumption. Collisions between gas molecules are perfectly elastic. ये भी है हमारे पास. The volume of the individual gas molecule is negligible. D option is the right one. Gas particles have strong intermolecular attraction. इसलिए कहती है कि बिल्कुल attraction नहीं है. The pressure exerted by a gas in a container is due to. Pressure हमारे पास क्या होता है? The collision of gas molecule with the container gas. साथ वाले molecules के साथ भी और container walls के साथ भी. Which of the following best describes the motion of a gas molecule according to kinetic molecular theory? A option is the right one. Gas molecules move in a straight line until they collide with something. जब वो टकराएंगे तो अपनी direction change कर लेंगे. In an ideal gas, the collisions between molecules are. Ideal gas में perfectly elastic है. There is no exchange of energy. C option. Which of the following gases can be easily liquefied? तो आपके पास यहाँ पे बनेगा डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड. जितने बॉन्ड्स आपके पास पोलर होते जाएंगे उतनी आपको लिक्विफेक्शन करते जाते हो. तो ये बिल्कुल नॉन पोलर है. वैसे सारी गैसेस नॉन पोलर है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड में फिर भी बॉन्ड जो है एक सी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे, उसमें पोलैरिटी है तो आप उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो. The critical temperature of a gas is defined as the temperature above which gas cannot be liquefied by pressure. अब कोई भी प्रेशर अप्लाई कर दो गैस लिक्विफाई नहीं होगी. इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. Which of the following laws is used to explain the liquefaction of gases? Liquefaction of gases के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? Joule-Thomson इफेक्ट हम यूज करते हैं. In the Lind's method for liquefaction of air, the cooling is achieved. Cooling हम achieve करते हैं by the sudden expansion of the gases. A option. Liquefaction of gases is an application of second law of thermodynamics. B option. The van der Waals equation of state for real gases. हमारे पास van der Waals है P plus V 2A B minus B.
is equal to RT, A option. इट्स एक्चुअली P प्लस वी स्क्र होगा, ये यहाँ पे मेरे पास ऊपर नहीं गया, P प्लस वी स्क्र ऑप्शन। इन द वंडर बॉल्स इक्वेशन द टर्म ए करेक्ट फॉर्म, जो हम ए यूज करते हैं, इधर ऊपर वाली इक्वेशन ही है वंडर बॉल्स इक्वेशन, ये जो आपके पास है ए, इट स्टैंड फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन। और जो टर्म बी है वो आप यूज करते हो वॉल्यूम के लिए, द फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। द वंडर बॉल्स बी जो है उसके हमारे पास यूनिट क्या है, वॉल्यूम पर मोल, मतलब लीटर पर मोल। Which of the following is a major limitation of the van der Waals equation? हमारे पास क्या है, इट डजंट प्रिडिक्ट गैस बिहेवियर नियर द क्रिटिकल पॉइंट एक्यूरेटली, ये हमारे पास लिमिटेशन है कि क्रिटिकल पॉइंट के करीब ये हमें नहीं बताता दैट हाउ विल द गैस बिहेव। For gases like helium and hydrogen, the value of the van der Waals constant is relatively low. जितनी आपके पास नॉन पोलर गैसेस होंगी उतना आपके पास जो वैल्यू है वन der Waals कांस्टेंट ए की वो लो होती जाएगी, क्योंकि वो क्या है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बताता है। और नॉन पोलर गैसेस में आपके पास क्या है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, रैंडम डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वीक है, तो उसकी वैल्यू भी कम आती जाएगी। If the initial volume of a gas is 2 liter and the pressure is 4, what will be the pressure if the volume changes to 1 liter, assuming the temperature remains constant? Initial volume 2 है, pressure 4 है, तो pressure पूछा हुआ है वॉल्यूम चेंजेस टू 1, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, 2 से 1 हाफ हो रहा है, तो प्रेशर क्या है उतना डबल हो जाएगा, 4 से 8 atm। वॉल्स का यूज किया गया है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जाएगा ऊपर। In a gas mixture, if the mole fraction of a gas is 0.25 and the total pressure is 8 atm, what is the partial pressure of a gas? Partial pressure निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर, तो 0.25 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, आई थिंक इसका आंसर आपके पास 2 atm आ जाएगा। डॉल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, डॉल्टन लॉ हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए होता है, तो मतलब आइडियल एंड रियल गैसेस दोनों पे एप्लीकेबल है। प्रेशर जो है वो आइडियल गैसेस का भी होता है, रियल गैसेस का भी होता है। Which of the following assumption is made in Dalton's law? Dalton's law हमें क्या कहता है जी, the gases in the mixture are non-reactive. The total pressure is equal to the sum of the individual pressure of the gases when the gases are non-reactive. आपस में react नहीं करेंगी बिल्कुल भी। If the partial pressure of the two gases in a mixture are equal, what can be interference about their mole fraction? अगर उनका पार्शियल प्रेशर इक्वल है, उनके मोल फ्रैक्शंस भी इक्वल होंगे, बहुत गैसेस है इक्वल मोल फ्रैक्शंस भी ऑप्शन। नेक्स्ट इंग्लिश हमारे पास है सिनोनिम ऑफ क्लेमेंसी, क्लेमेंसी हम कहते हैं मर्सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ कार्डिनल, कार्डिनल हम कहते हैं किसी चीज की इंपॉर्टेंट चीज को, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा सी ऑप्शन, डेट वन इज प्राइम। एंटोनिम ऑफ कैंडोर, कैंडोर हम कहते हैं किसी ईमानदार चीज, वो ईमानदार बंदे को, ईमानदारी को, तो यहाँ पे हमारे पास उसका ऑपोजिट बनेगा डिसऑनेस्टी। चूज द राइट वन। इफ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, हमारे पास ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, इट इज द जीरो कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे आप हमेशा सच बोलोगे आप अच्छा पाओगे, अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो वो बॉयल हो जाएगा, तो दोनों में आप सिंपल जीरो कंडीशनल में क्या करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और आप दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो। चूज द राइट वन। इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बिग हाउस, सेकंड वाले में क्या, इफ आई हैव यूज कर लिए, हैड है, आई वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वुड वुड वगैरह के साथ, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। आपके पास थर्ड कंडीशनल दिया गया है। चूज द राइट वन। He is done her work quietly. He is doing his work quietly. C option is the right one. आपके पास सिंपल कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर के साथ आप फोर्थ फॉर्म लगाते हो या आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और ही के साथ इजी लगेगा तो सी ऑप्शन। देन हमारे पास डिस्कवरीज थी इस बार जनरल नॉलेज में, टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, बी ऑप्शन। Photography was invented by Matthew Barry, A option.
एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, ये बहुत इजी है, नन ऑफ दीज है, किसने है, जॉन डॉल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी, जो केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत इजी डिस्कवरी है। सेल इन बायोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी जो है इसका क्विज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट डज वाइगोस्की एम्फसाइज अबाउट हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज। विगोस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को किस तरह नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए। स्टूडेंट पैसिवली एब्जॉर्ब नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नहीं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट इज solely provided by teacher, knowledge is solely provided by teacher, नहीं। knowledge is acquired through root मेमोराइजेशन, रट्टे के थ्रू हासिल करना चाहिए, नहीं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, दिस इज एम्फेसाइज बाय वाइगोस्की थ्योरी। तो बी जो है बेटा आपके पास 43 के वो करेक्ट। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाई इज लैंग्वेज क्रूशियल फॉर लर्निंग। लैंग्वेज जो है क्यों इंपॉर्टेंट है लर्निंग के हवाले से। इट हेल्प टू मेमोराइज फैक्ट, नहीं। इट इज ओनली यूजफुल फॉर राइटिंग असाइनमेंट, गलत। इट इज इररेलेवेंट फॉर टू द लर्निंग प्रोसेस। It is essential for communication and understanding concept। तो वाइगोस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बेटा लैंग्वेज जरूरी है लर्निंग के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने कम्युनिकेट करना है, आपने चीज़ों को समझना है। अगर आपकी लैंग्वेज से नो हाउ होगी तभी जो है आप अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डेक्लेरेटिव नॉलेज। प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, नहीं। हैंड्स ऑन प्रोसीजर, नहीं। सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजी, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइमरी फोकस है किसका बेटा? डेक्लेरेटिव नॉलेज का। करेक्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी है। विच स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड टू अवॉइड जेंडर बायसनेस इन क्लासरूम। अगर आप जो है जेंडर बायसनेस की वजह से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो आप यूज करें ताकि जेंडर बायसनेस जो है उसको क्लासरूम के अंदर जो है वो खत्म किया जा सके। तो कॉलिंग ऑन बॉयज मोर फ्रिक्वेंटली देन गर्ल्स, आप लड़कों को जो है ज्यादा बुलाएं एज कम्पेयर टू लड़कियां, तो बेटा इससे जनरल जेंडर बायसनेस जो है वो कम नहीं होगी, ज्यादा खराब होगी। चूजिंग टेक्स्ट एंड मटेरियल दैट reinforce जेंडर स्टीरियोटाइप, नहीं। लिमिटिंग डिस्कशन टू जेंडर न्यूट्रल टॉपिक, आप डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो बेटा वो उसके मसले का हल तो नहीं है। रोटेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको रोटेट करें, एक दिन लड़के को सीआर बना दें, एक दिन लड़की को सीआर बना दें। और प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दोनों को क्या दें? इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करेंगे, तब जो है जेंडर बायसनेस जो है वो क्लासरूम के अंदर से खत्म हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? चार्ली, सी। What does the term dyslexia refer to the describe in the lesson? Dyslexia जो है किस चीज को रेफर करती है? प्रॉब्लम विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन, or disorder affecting physical coordination and inability to speak clearly, difficulty with reading, writing and interpreting symbol is come under the category of dyslexia। राइट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? बेटा स्लाइड जो दी थी, मटेरियल आपको दिया था उसके अंदर जो क्लियरली मेंशन था, जो द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ की टर्म इन प्लानिंग। जब बेटा आप प्लानिंग करते हैं तो कौन सी एक ऐसी टर्म है जिसको आप कंसिडर नहीं करते? गोल्स को बिल्कुल आप कंसिडर करते हैं। कोई भी चीज आप प्लान कर रहे हैं, आप उसके गोल्स को देखेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, तो उसके लिहाज से स्ट्रेटजीज बनाएंगे प्लानिंग के लिहाज से। फीडबैक जो है बेटा आप उसको कंसिडर नहीं करते वाइल प्लानिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपके पास? डेल्टा। फीडबैक जो है उसको आप कंसिडर नहीं करते जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड लेसन प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा लेसन प्लानिंग के अंदर? टू इंश्योर एवरी स्टूडेंट गेट इक्वल अटेंशन, नहीं। टू एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड बी फ्लेक्सिबल एज नीडेड, ताकि आप क्या करें? एक प्रॉपर टाइम जो है स्पेसिफिक टाइम जो है एलोकेट करें हर एक्टिविटी के लिए और आप फ्लेक्सिबल भी रहे। ये बेटा पर्पस होता है, ये फायदा होता है किसका? टाइम मैनेजमेंट। टू डिसाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट, नहीं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, नहीं। आप जो है प्रॉपर चीज को प्रॉपर टाइम के ऊपर कर सके, ये फायदा है टाइम मैनेजमेंट। What domain, which domain of learning involve activities like riding a bicycle and stretching? बेटा आपकी फिजिकल मूवमेंट जो है वो इसमें शामिल हो रही है। तो फिजिकल मूवमेंट ना तो कॉग्निटिव में आती है ना अफेक्टिव में आती है, किस में आती है? साइकोमोटर डोमेन के अंदर। चार्ली जो है वो आपके पास ठीक है। एट विच लेवल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंबाइन एलिमेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर स्टूडेंट जो है कोई नई चीज क्रिएट कर रहा है तो ना तो एवेल्युएशन में आएगा, ना एप्लीकेशन में, ना नॉलेज में, किस में आएगा बेटा? सिंथेसिस में।
वो चीजों को मिला के कोई नई चीज सिंथेसाइज कर रहा है, नई चीज क्रिएट कर रहा है, किस लेवल के अंदर आएगा सिंथेसिस। विच क्वेश्चन प्रॉम्प्ट इंडिकेट अ नीड ऑफ एवेलुएशन, कौन सा ऐसा प्रॉम्प्ट जो इंडिकेट कर रहा है, जो जाहिर कर रहा है एवेलुएशन। Identify motives, explaining the main idea, illustrate a concept, judge the effectiveness of the policy is indicating the need for evaluation। जब आप जो एक पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को जो है जज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। करेक्ट जो है आपके पास क्या होगा, चार्ली जो है आपके पास करेक्ट। बेटा बीएड की डिस्कशन जो है वो खत्म हुई। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।